2025 کے آخری لمحات الوداع ہونے کو ہے۔ 2025 سال نو کی ہے، آمد آمد خوش آمدید کہیں گے۔ 2026 کو پاکستان میں سال نو کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ شہر شہر جشن، چراغاں، آتش بازی۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو نیا سال مبارک۔ الوداع 2025، خوش آمدید 2026۔ تمام اہل وطن کو ARY نیوز کی جانب سے نیا سال بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ وطن عزیز اور تمام پاکستانیوں کے لیے یہ سال خوش قسمت ثابت ہو۔ ملک بھر میں ہر طرف جشن کا سما ہے اور سال نو کو ویلکم کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کی گئی ہیں۔ کراچی سے کشمور اور خیبر سے کشمیر تک چراغاں ہیں، آتش بازی ہے، رنگ و نور میں ڈوبے نظارے ہیں اور مختلف شہروں کے مناظر بھی آپ ARY کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نئی امیدوں، نئی خواہشات کے ساتھ 2026 کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں ہر طرف جشن کا سما ہے۔ سال نو کو ویلکم کرنے کے لیے شہر شہر، نگر نگر زبردست تیاریاں۔ کراچی سے کشمور، خیبر سے کشمیر رنگ و روشنی کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ کہیں چراغاں تو کہیں زبردست آتش بازی سے آسمان رنگین ہے۔ وفاقی دارالحکومت شہر اسلام آباد ہو یا پھر کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، تمام ہی شہروں میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ منچلیں سڑکوں پر ہیں، سال نو کا جشن منا رہے ہیں، خوب اللہ گلا ناچ گانا کیا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں اگر بات کریں جو سمبلز ہیں، خاص طور پر لاہور میں لیبرٹی چوک پر، لیبرٹی گول چکر پر، کراچی میں مختلف جگہیں ہیں، پورٹ گرینڈ پر، 5 اسٹار چرنگی پر، سی ویو پر منچلوں کا رش ہوتا ہے۔ شہر اقتدار میں بھی F9 پارک میں منچلے اور شہری جمع ہیں اور اس کے علاوہ پشاور میں بھی رنگ روڈ اور اس کے اطراف میں جشن منایا جا رہا ہے۔ بالکل نئی امیدوں اور نئی خواہشات کے ساتھ 2026 کو خوش آمدید۔ ملک بھر میں ہر طرف جشن کا سما ہے۔ سال نو کو ویلکم کرنے کے لیے شہر شہر، نگر نگر زبردست تیاریاں ہیں جن کے مناظر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ پشاور کے یہ مناظر ہیں جہاں پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اہل وطن کو ARY نیوز کی جانب سے نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔ کراچی سے کشمور، خیبر سے کشمیر رنگ و روشنی کا سیلاب امڈا ہوا ہے۔ کہیں چراغاں کیا جا رہا ہے، کہیں زبردست آتش بازی سے آسمان ہم رنگین دیکھ رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا F9 پارک جہاں پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں سی ویو ہے، پورٹ گرینڈ ہے، باغ ابن قاسم ہے جہاں پر نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ منچلے سڑکوں پر نکل آئے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے۔ سکھر کے لینس ڈاؤن پل پر لوگ جمع ہیں۔ لاہور میں نئے سال کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ لبرٹی مارکیٹ پر آتش بازی کی جا رہی ہے۔ ملتان میں گھنٹہ گھر جہاں پر لوگ جمع ہیں، بڑی تعداد میں جشن منا رہے ہیں، سال نو کو ویلکم کہہ رہے ہیں۔ پشاور کا حیات آباد ہے جہاں پر جشن کا سما ہے۔ کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں سال نو کو جوش و جذبے کے ساتھ خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ تمام اہل وطن کو ARY فیملی کی جانب سے نیا سال بہت مبارک ہو اور دعا ہے کہ وطن عزیز اور تمام پاکستانیوں کے لیے یہ سال خوش قسمت ثابت ہو۔ 2025 کو پیچھے چھوڑ کر ہم قدم رکھ چکے ہیں اب سال نو 2026 میں، اور اگر 2025 کی بات کی جائے تو وطن عزیز کے لیے یہ سال بہترین سال رہا جس میں معاشی اور دفاعی کامیابیاں ہمارا مقدر بنی، مارکہ حق میں کامیابی ہمارا مقدر بنی اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا، پاکستان کا نام بلند ہوا۔ اور ہماری دعا ہے کہ 2026 میں بھی پاکستان کا نام اسی طرح روشن رہے، تابندہ رہے اور سرفراز رہے۔ تلخ و شیریں یادیں لیے 2025 رخصت ہو گیا۔ 2026 کو پاکستان میں ویلکم کیا جا رہا ہے۔ نئے سال کا پاکستان میں آغاز ہو گیا ہے اور استقبال کیا جا رہا ہے مختلف مقامات پر آتش بازی کے ذریعے۔ کراچی، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے کئی شہروں میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس سے آسمان جگمگا اٹھا ہے، جبکہ عوام نے نئے سال سے امیدیں بھی باندھ لی ہیں۔ وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی جا رہی ہے۔ لوگوں کا جوش و خروش دیدنی ہے، چہروں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جبکہ سب نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد بھی دی ہے۔ ارض پاک کی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں اور وطن کو عظیم تر بنانے کا عزم بھی کیا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں سڑکوں پر ہیں، خوب ہلا گلا کیا جا رہا ہے۔ اس وقت مختلف شہروں میں آتش بازی کی جا رہی ہے، آسمان رنگ و نور کی روشنی میں نہا گیا ہے۔ 2026 کو پاکستان میں بھی دنیا کے مختلف ممالک کی طرح ویلکم کیا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں کے مناظر آپ ARY کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر نئے سال کو
खुशामदीद किया जा रहा है, खुशामदीद कहा जा रहा है आतिशबाजी के ज़रिए, एक दूसरे को मुबारकबाद के ज़रिए, हल्ला गुल्ला मौज मस्ती के ज़रिए और इस उम्मीद और दुआओं के साथ कि पाकिस्तान में 2026 खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। तलखुशीरी यादें लिए 2025 पाकिस्तान से रुखसत हो चुका है और 2025 का सबसे जो खूबसूरत लम्हा था, सबसे ज़्यादा यादगार लम्हा वो 10 मई का था, जब सिर्फ 3 घंटों के अंदर पाकिस्तान ने अपने आज़िली दुश्मन भारत को नाकों चने चबवाए थे। पाकिस्तानियों के लिए 2025 यादगार साल था और अब 2026 में भी खुशामदीद पाकिस्तानी कर रहे हैं आतिशबाजी के ज़रिए, रंगो नूर से आसमान। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं RY की स्क्रीन पर, सक्खर के मनाजिर हैं अयूब ब्रिज के, जहाँ पर खूब आतिशबाजी की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल बिल्कुल इसी तरीके से है, जहाँ पर आतिशबाजी हो रही है और नए साल को वेलकम किया जा रहा है। बिल्कुल लेंसडाउन ब्रिज के ये मनाजिर हैं सक्खर से, इस वक्त हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, जहाँ पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। और 2026 में कदम रखते ही ARY के प्लेटफॉर्म से हम अपने तमाम नाजरीन से ये गुजारिश करेंगे कि आप आतिशबाजी भी कीजिए, जश्न भी मनाइए, लेकिन हवाई फायरिंग से इज्तनाब कीजिए, हवाई फायरिंग से गुरेज कीजिए। और शहर कायद के लोगों की अगर बात की जाए तो शहर कायद के लोगों के लिए इस मरतबा अच्छी खबर ये रही कि शहर कायद के लोगों को सी व्यू पर जाने पर कोई पाबंदी नहीं रही जवाद, कि वो समंदर में जा सकते हैं, समंदर पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे जब वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि बड़ी तादाद में फैमिलीज़ जो हैं वो वहाँ पर आ रही हैं और मंचले भी आ रहे हैं वहाँ पर। ख़ास तौर पर जो पठान कम्युनिटी के जो मंचले नौजवान हैं वो जब वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो वो वहाँ पर अटैंड कर रहे हैं, फैमिलीज़ वहाँ पर जा रही हैं, वो भी इंजॉय कर रही हैं। आतिशबाजी के ये इस वक्त मनाजिर आप देख रहे हैं, नए ख्वाब, नई उम्मीदें, नया साल, खुश आमदी 2026। 12 बजते ही साल नौ के आगाज़ के साथ मुल्क भर में आतिशबाजी और जश्न का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। क्या सक्खर, क्या इस्लामाबाद, क्या कराची, क्या लाहौर, मुल्क भर में इस वक्त जश्न का सिलसिला जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है और सक्खर में ये दरियाए सिंध पर जो लेंसडाउन ब्रिज है, यहाँ पर जब ये आतिशबाजी का मुजाहरा हम देख रहे हैं जवाद, तो यूँ गुमान होता है कि जैसे शायद ये किसी और मुल्क का, किसी वेस्टर्न कंट्री का एक बड़ा ही खूबसूरत सा मंजर पेश करे। और बारिश भी हो रही है और ऐसे में मौसम ने जो है वो साले नौ की जो खुशियों को चार चांद लगा दिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, सक्खर नहीं लग रहा, ये किसी वेस्टर्न कंट्री के ही नज़ारे लग रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में भी सूरत हाल इसी तरह की है और जैसे शाइस्ता आपने बताया कि कराची में ख़ास तौर पर तमाम रास्ते पुलिस की जानिब से खोल दिए गए हैं और लोगों को बिल्कुल आज़ादी के साथ नए साल की खुशियाँ मनाने की आज़ादी दी गई है, लेकिन साथ में पुलिस भी मुतहर्रिक है और पुलिस ड्रोन कैमरों के ज़रिए हवाई फायरिंग के सिलसिले को रोकने के लिए मुतहर्रिक है। ये अपने नाज़रीन को बताते चले जो हवाई फायरिंग करने का इरादा रखते हैं, ड्रोन कैमरों के ज़रिए उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं और उसके बाद में पुलिस कार्रवाई यकीनी तौर पर करेगी। हुल्लड़बाजी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से पुलिस निपटने के लिए तैयार है। ये सक्खर के मनाजिर हैं लेंसडाउन ब्रिज के, जहां पर खूब आतिशबाजी हो रही है। इससे पहले हमने आपको मनाजिर दिखाए थे कराची के, पोर्ट ग्रैंड के, इस्लामाबाद के भी मनाजिर आपने देखे। पेशावर रिंग रोड पर खूब हुल्लड़बाजी की जा रही है और वहाँ पर भी मनचले जश्न मना रहे हैं। नए साल को खुश आमदीद किया जा रहा है। नई उम्मीदों, नई ख्वाहिशात के साथ 2026 को पाकिस्तान में खुश आमदीद कह दिया गया। मुल्क भर में हर तरफ जश्न का समा है। साल नौ को वेलकम करने के लिए शहर शहर, नगर नगर ज़बरदस्त तैयारियां हैं। कराची से कश्मीर, खैबर से कश्मीर, रंगो रोशनी का सैलाब उमड़ आया है। कहीं चिरागा है तो कहीं ज़बरदस्त आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो, कराची हो, पेशावर, कोयटा, सक्खर, हैदराबाद, तमाम ही शहरों में, मुल्तान में भी जश्न मनाया जा रहा है और वहाँ पर आतिशबाजी के ज़रिए नए साल को वेलकम किया जा रहा है। 2025 तलखो शीरी यादें लिए हमसे रुखसत हो चुका है। अब हम 2026 में दाखिल हो चुके हैं और अर्ज़ पाक की सलामती, तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। वतन को अजीम तर बनाने का अज़्म लिए 2026 पाकिस्तान में अब आ चुका है और पाकिस्तानी 2026 में दाखिल हो चुके हैं। मुल्क भर में नए साल का इस्तकबाल मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी के ज़रिए किया जा रहा है।
बिल्कुल। और जवान, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि नए साल पर हवाई फायरिंग रोकने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हवाई फायरिंग का जो इस्तेमाल है वो नहीं करना चाहिए, हवाई फायरिंग नहीं करनी चाहिए। अंधी गोली जो है वो किसी का घर भी जो है वो मातम में बदल सकती है। इसके साथ साथ अगर हम अपने नाज़रीन को मनाजिर दिखाएं तो ये हयाताबाद पेशावर के मनाजिर हैं, शाहीन चौक इस्लामाबाद के मनाजिर हैं, फिर लेंसडाउन ब्रिज सक्खर के ये मनाजिर हैं जहाँ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा है। साल 2025 अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। इसके बाद अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ दुनिया के कई ममालिक में साल नौ का आगाज़ भी हो गया है। सबसे पहले न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे तो न्यूजीलैंड ने साल नौ यानी 2026 को कहा खुशामदीद। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, जनूबी और शुमाली कोरिया में भी नया साल जो है वो शुरू हो चुका है। नए साल की आमद पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। कहीं घंटी बजाकर नए साल को खुशामदीद किया गया, कहीं आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ जो ट्रेडिशंस हैं, हर मुल्क का जो अपना कल्चर है उसके हिसाब से साल नौ को खुशामदीद कहा गया। मुख्तलिफ खित्तों में वक्त के फ़र्क के बाइस 2026 का जो आगाज़ है वो अलग अलग औकात में हुआ। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने खुशामदीद कहा, और मेरे ख्याल से अमेरिका जो है वो सबसे आखिर में साल नौ को खुशामदीद कहेगा। और अब इस वक्त पाकिस्तान में जश्न का समा है, क्योंकि पाकिस्तान में साल नौ का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। नई उम्मीदों, नई ख्वाहिशात के साथ 2026 को हम कह रहे हैं खुशामदीद। और इसके साथ साथ हम दुआ गो हैं कि ये नया साल इस मुल्क के लिए, इस अर्ज़ पाक के लिए, इस अर्ज़ पाक में बसने वाले लोगों के लिए बेहतरीन साल हो, खुशी का साल हो। और ये जो नया साल है इस पर हम यही दुआ करते हैं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। बिल्कुल, नई उम्मीदों, नई ख्वाहिशात के साथ हम 2026 में दाखिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर, कराची गवर्नर हाउस के मनाजिर हैं ये। और अब से कुछ दिन पहले शाइस्ता, जैसे आपने अहमद नदीम कासमी के अशार, ये हर साल ही जब आगाज़ होते हैं ऐसा लगता है उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये खूबसूरत अशार अपनी अर्ज़ पाक के लिए हमेशा ही हमारी ज़ुबानों पर आते हैं कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर, गवर्नर हाउस कराची के मनाजिर हैं ये, जहाँ पर आसमान रंगो नूर की रोशनी में नहा गया है। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। गुज़िश्ता बरस भी गवर्नर हाउस कराची में सबसे तवील आतिशबाजी का रिकॉर्ड कायम किया गया था, और इस बरस भी अब तक गवर्नर हाउस कराची में शानदार आतिशबाजी की जा रही है। नए साल को वेलकम किया जा रहा है। एक तरफ सक्खर के मनाजिर आप ARY की स्क्रीन पर देख सकते हैं, और दूसरी जानिब गवर्नर हाउस कराची के मनाजिर हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, तमाम ही छोटे बड़े शहरों में बिल्कुल इसी तरीके से नए साल को वेलकम किया जा रहा है। साल नौ को वेलकम करने के लिए शहर शहर, नगर नगर ज़बरदस्त तैयारियां की गई थी। कराची से लेकर कश्मीर तक बात करें, और अगर हम इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों की बात करें वहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी ही है। खैबर से कश्मीर तक रंगो नूर की रोशनी का सैलाब आ चुका है। चिरागा कहीं पर किया जा रहा है, कहीं पर आतिशबाजी की जा रही है, और मनचले ढोल की थाप पर रक़्स भी कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और दुआएं भी की जा रही हैं कि नया साल पाकिस्तान में खुशियों का साल हो और पाकिस्तान में मज़ीद तरक्की हो। ख़ास तौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मईशत की तरक्की के लिए भी हुकूमत की जानिब से आज़म किया गया है कि 2026 अब यकीनी तौर पर पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का साल होगा। मुख्तलिफ शहरों में साल नौ को वेलकम करने के लिए आतिशबाजी की जा रही है। सक्खर और कराची के मनाजिर आपने ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर देखे। जहाँ जहाँ पर भी जश्न मनाया जा रहा है वो तमाम तर मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जवाद, जब साल नौ का आगाज़ होता है और जब जो पुराना साल है जो जिसे हम अलविदा कह रहे होते हैं, तो वो एक बड़ा बेहतरीन टाइम होता है खुद एहतसाबी का। इसमें हम ये प्लान करते हैं कि हमने आगे क्या करना है, हम अपनी गलतियों पर, अपनी कोताहियों पर नज़र डालते हैं। जो चीज़ें हमने पिछले साल हासिल नहीं की होती हैं उनके लिए हम प्लान करते हैं कि उनको किस तरीके से नेक्स्ट ईयर जो वो प्लान कर सकते हैं। तो जो साल नौ होता है वो एक बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आप अपनी गलतियों, खामियों और कोताहियों पर नज़रसानी भी करते हैं, और इसके साथ साथ आप दुआएं भी करते हैं और प्लान भी करते हैं कि नए साल में आपके गोल्स क्या हैं,
اور آپ کی اچیومنٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی آپ نظر ثانی کرتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے کھویا ہے گزشتہ سال میں اور کیا آپ نے پایا ہے. اسی طرح ہم کچھ یہ بھی پلان کرتے ہیں نا کہ اچھا یہ سال جب آئے گا تو اس سال جو ہے وہ مجھے یہ یا تو گھر خریدنا ہے یا مجھے گاڑی خریدنی ہے یا مجھے اپنا ویٹ کم کرنا ہے یا مجھے کھانا کم کھانا ہے. تو جواد آپ کا کوئی اس طرح کا پلان ہے اس سال کے لیے؟ بہت سارے پلان سب نے کیے ہوتے ہیں اور بالکل اسی طریقے سے بھی پلان ہے کہ جو گول سیٹ کیے ہیں کچھ کانفیڈینشلی رہنے سے تو زیادہ بہتر ہے. ملک بھر میں جو استقبال کیا جا رہا ہے نئے سال کا، نئی خوشیوں کا، کچھ دعائیں ہیں اور وہ دعائیں سبھی اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور اس وقت ارض پاک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، ترقی، امن اور استحکام کی دعائیں کی جا رہی ہیں پاکستان بھر میں، اور آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے. مختلف شہروں میں نئے سال کو ویلکم کیا جا رہا ہے. لاہور، کراچی، پشاور، سکھر، ملتان، اسلام آباد، فیصل آباد، تمام ہی شہروں میں جشن منایا جا رہا ہے. اور یقینی طور پر یہ جشن اس لیے منایا جاتا ہے کہ خوشیوں کے ساتھ سال بھر اسی طرح کی خوشیاں دیکھنے کو ملیں. اور پاکستان ہی نہیں، جہاں جہاں پر 4:20 پاکستانی وقت کے مطابق جب سے پہلا سورج نیوزی لینڈ میں غالباً سورج کی کرنیں نکلی اور 2026 کو ویلکم کیا گیا. اس کے بعد سے اب تک مختلف شہروں میں جہاں جہاں جشن منایا گیا، جہاں جہاں پر نئے سال کو ویلکم کیا گیا، ہم نے آپ کو دکھایا، ARY کے پلیٹ فارم سے دکھایا. نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جاپان، ہانگ کانگ، تائیوان اور تھائی لینڈ میں 2026 کا شاندار استقبال کیا گیا. ابھی مختلف ممالک میں 2026 کو ویلکم کرنا، وہاں پر تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، جیسے کہ UAE اور خاص طور پر امریکہ ہے. وہاں پر ابھی وقت ہے 2026 کے آنے میں، وہاں ابھی 2025 میں ہی جی رہے ہیں ان ممالک کے باسی، اور یقینی طور پر وہاں پر بھی خوب جشن منایا جائے گا. پاکستان بھر میں بھی جشن منایا جا رہا ہے. 2025 کا آخری سورج بھی غروب ہوا. پاکستان میں جشن جو ہے وہ اس لیے بھی شاید تھوڑا اس کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے کیونکہ شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی کہ پیٹرول جو ہے وہ 10 روپے فی لیٹر کم ہو رہا ہے. تو یقیناً میرے خیال سے یہ بھی سال نو کی ایک خوشخبری اور سال نو کا ایک تحفہ ہے میرے خیال سے. بالکل. اب سے کچھ دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سال 2026 میں جو معاشی گول حکومت نے سیٹ کیے ہیں ان کے اہداف تک پہنچا جا سکے. اور سال کے ابتدا میں ہی عوام کو ایک تحفہ دیا. حکومت نے 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی ہے اور یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید کمی کی جائے گی. پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس پر قابو پانے کے لیے حکومت کوشش کی جا رہی ہے. اور 2025 پاکستانیوں کو ہمیشہ یاد رہے گا، نہ صرف ہمیں یاد رہے گا بلکہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی ہمیشہ یاد رہے گا، کیونکہ اس سال مئی میں 10 مئی کو جو پاکستان نے فتح حاصل کی تھی، جو پاکستان نے صرف 3 گھنٹے کے اندر نہ صرف بھارت پر بلکہ پوری دنیا پہ اپنی ایک دھاک بٹھا دی تھی، جس کے اثرات اب تک قائم ہے. عالمی جریدے، بڑے بڑے جریدے، فارن پالیسی ہو یا پھر دیگر جریدے، فائنینشیل ٹائمز ہو، یہ تمام ہی جریدے، بھارت میں بھی دی ہندو نے بھی لکھا کہ پاکستان کی کامیابیوں کا برس تھا. خارجی سطح پر پاکستان نے کامیابیاں سمیٹی ہیں اور دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان میں ایک خاص مقام حاصل کیا ہے پاکستان نے. اور اسی طریقے سے ہم ان خوشیوں کے ساتھ، ان کامیابیوں کے ساتھ 2026 میں داخل ہو رہے ہیں. تمام بڑے جریدے پاکستان کی جو معترف رہے انہوں نے بتایا کہ سال بھر پاکستان نے کس طریقے سے خارجی سطح پر اور معاشی میدان میں بھی کامیابیاں سمیٹی ہیں. اور انہی خوشیوں کے ساتھ، انہی کامیابیوں کے ساتھ ہم اب 2026 میں داخل ہو چکے ہیں. اور ان فتوحات کا سلسلہ، ان کامیابیوں کا سلسلہ یقینی طور پر 2026 میں بھی جاری و ساری رہے گا. ایک استحکام پاکستان میں آتا نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے ہم نے پہلی بار ایسا دیکھا ہوگا کہ 2025 کے آخر میں تمام ہی بڑے بڑے جریدے پاکستان کی کامیابیوں کے معترف رہے. ہمارے دشمن ممالک کی جانب سے بھی، ازلی دشمن میں جو ہے ہمارا بھارت، وہاں پر بھی سوالات اٹھائے گئے کہ پاکستان آگے نکل رہا ہے بھارت سے، اور پوری دنیا کے ان ممالک میں پاکستان کو جگہ مل رہی ہے جہاں پر بھارت کی خواہش ہوا کرتی ہے براہ راست رسائی پاکستان کو. 2025 میں ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو اوول آفس تک ہوئی کچھ ملاقاتیں اتنی زبردست رہیں جن کے اثرات اب تک جاری و ساری ہیں. بالکل. سال 2025 عالمی منظرنامے، سیاسی اور آئینی تبدیلیوں کے لحاظ سے پاکستان کے لیے اہم ترین سال رہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری مرتبہ صدارت سنبھالی. اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ہم نے دیکھا نمایاں بہتری بھی آئی.
साल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाक़या पाकिस्तान के लिए है वो होने वाली पाक भारत महदूद जंग थी। भारतीय राफेल तैयारों को जिस तरीके से हमने मार गिराया उसके चर्चे भी आलमी मीडिया पर रहे। फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा हुआ जिस पर दस्तखत हुए। साल 2025 में कुछ आईनी तब्दीलियां भी हमने देखी। 27वीं तरमीम जो है वो पार्लियामान से मंजूर हुई। फिर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात किया गया। इस हवाले से भी हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। नई उम्मीदें हैं, नई ख्वाहिशात हैं। 2026 को हम कह रहे हैं खुशामदीद, और मुल्क में हर तरफ इस वक्त है जश्न का समा। अहले वतन को ARY न्यूज़ की जानिब से बहुत बहुत साल नौ की मुबारक हो। नगर नगर ज़बरदस्त तैयारियां भी हम देख रहे हैं। कराची से कश्मीर, खैबर से कश्मीर, रंगो रोशनी का सैलाब हर तरफ हमें नज़र आ रहा है आतिशबाजी की सूरत में, और चिरागा किया जा रहा है कहीं पर, कहीं ज़बरदस्त आतिशबाजी की जा रही है जिसमें आसमान हमें रंगीन दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद का F9 पार्क जहाँ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये है गवर्नर हाउस कराची के मनाजिर। गवर्नर हाउस में हर साल ही जो है इस तरह से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है, जो कि अभी हम देख भी रहे हैं। इसके साथ साथ सीव्यू, पोर्ट ब्रांड, बाग इब्न कासिम पर भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। मनचले जो हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं, फैमिलीज़ के साथ लोग निकले हुए हैं। आप फैमिलीज़ के साथ निकलिए, इंजॉय कीजिए, साल नौ का जश्न मनाइए, लेकिन आतिशबाजी के ज़रिए ज़रूर मनाइए, म्यूज़िक के ज़रिए ज़रूर मनाइए, लेकिन हवाई फायरिंग करके ना मनाइए, क्योंकि जो अंधी गोली है वो किसी का भी घर जो है वो मातम कदा बना सकती है, किसी के भी घर की खुशियों को ख़त्म कर सकती है। खुदा न ख्वास्ता वो गोली जो आसमान पर जाती है वो वापस नीचे ही आती है, उससे आपका अपना कोई प्यारा भी जो है वो जान से जा सकता है या वो ज़ख्मी हो सकता है। तो हवाई फायरिंग करने से जो है वो गुरेज करें, बल्कि आतिशबाजी जिस तरीके से हम ये दिखा भी रहे हैं अपने नाजरीन को, इस तरीके से भी इंजॉय किया जा सकता है। साल नौ को खुशामदीद कहने के बेशुमार तरीके हो सकते हैं। इसके साथ साथ दुआएं की जा सकती हैं कि ये जो साल है, नया साल, ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो, हमारे वतन के लिए बहुत अच्छा साबित हो, हमारे ख़ानदान के लिए बहुत अच्छा साबित हो। गवर्नर हाउस के मनाजिर आप देख रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद शाहीन चौक के मनाजिर आप देख रहे हैं। साल 2025 अपने इख्तिताम को पहुँचने के बाद अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ दुनिया के कई ममालिक में साल नौ का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, जनूबी और शुमाली कोरिया में भी नया साल शुरू हो चुका है। मौसम भी बड़ा ही खूबसूरत हो गया है। वो कहते हैं कि दिसंबर में जब तक बारिश ना हो तो मज़ा नहीं आता, और दिसंबर जो है वो वैसे तो खुश्क गुजरा, लेकिन एंड में जो है वो बारिश भी हुई और मरी में जो है वो बर्फबारी हुई है, और बर्फबारी में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे जो हैं वो इस वक्त हम देख रहे हैं। एक नया ही समा देखने में आ रहा है। और सयाह इंतजार करते हैं ऐसे मौसम का, और मौसम और वक्त जब दोनों ही मैच कर जाए तो खुशियां दुबाला हो जाती हैं। एक तो नए साल की खुशी में बर्फबारी में आतिशबाजी की जा रही है, और वहाँ पर सयाह जो मौजूद थे वो इस इंतज़ार में थे कि वो बर्फबारी देखें। आसमान से बरसते बर्फ़ के गाले इन खुशियों का पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में साल 2026 नई ख्वाहिशात और नई उम्मीदें और कामयाबियों का साल होगा। नए साल के आगाज़ पर इस वक्त आतिशबाजी की जाए। ये मरी के मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर मनचले इंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ ढोल की थाप पर रक्स करते नज़र आ रहे हैं, बर्फबारी को इंजॉय कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब आतिशबाजी हो रही है, और उस आतिशबाजी में आसमान से रुई के गाले गिरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बर्फबारी में आतिशबाजी करते नज़र आ रहे हैं, मनचले ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं। सयाह वहाँ पर मौजूद होते हैं, इंतज़ार करते हैं साल भर के बर्फबारी उन्हें मिले। जब वो इंजॉय करने के लिए जाते हैं उनकी पूरी कोशिश और दुआएं यही होती हैं कि वो बर्फबारी देख सकें, क्योंकि छुट्टियां महदूद होती हैं सयाहों की। और अब जो वहाँ पर साल नौ को जश्न मनाने के लिए मौजूद थे सयाह, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो दीवाना वार सड़कों पर रक्स करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब आतिशबाजी और आसमान पर रुई के गालों के गिरने के मनाजिर हैं। तो कराची और इस्लामाबाद के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। शहर इक़्तिदार में भी आतिशबाजी की जा रही है। कराची में भी गवर्नर हाउस में गुज़िश्ता बरस 50 मिनट से ज़ायद आतिशबाजी की गई थी, और गवर्नर कामरान टेसूरी ने कहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्त आतिशबाजी का रिकॉर्ड हमने कायम किया है। इस साल भी
زبردست آتش بازی کی جا رہی ہے کراچی میں. کراچی کے گورنر ہاؤس میں شاہین چوک اسلام آباد کے مناظر ہیں, دوسری طرف کراچی گورنر ہاؤس کے مناظر ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو مری کے مناظر دکھائے تھے جہاں پر برف باری بھی ہو رہی تھی, منچرے دیوانہ وار رقص کرتے بھی نظر آ رہے تھے. نئے سال کو ویلکم کیا جا رہا ہے. گورنر ہاؤس کراچی کے مناظر, دوسری جانب اسلام آباد شاہین چوک کے مناظر ہیں جہاں پر آتش بازی کی جا رہی ہے. آسمان رنگ و نور کی برسات میں ڈوبا ہوا ہے. دنیا بھر میں اسی طریقے سے نئے سال کو ویلکم کیا گیا. نیوزی لینڈ میں بڑی تعداد میں شہری جمع ہوئے تھے. جب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا تھا اس کاؤنٹ ڈاؤن میں ہم آواز ہوئے پورے نیوزی لینڈ کے واسی. آکلینڈ کے اسکائی ٹاور پر شاندار آتش بازی ہوئی, ٹاور روشنیوں سے جگمگایا. آسٹریلیا میں نئے سال کی آمد پر سڈنی ہاربر روشنیوں سے جگمگا اٹھتا ہے. مختلف شہروں میں روایتی انداز میں, آپ سے کچھ دیر پہلے ہم نے بیجنگ میں دکھایا تھا آپ کو جس طریقے سے وہاں پر روایتی چائنیز رقص کے ساتھ نئے سال کو ویلکم کیا گیا تھا. نواب شاہ کے مناظر آپ دیکھیے, کیا شاندار آتش بازی کی جا رہی ہے. نئے سال کو وہاں پر ویلکم کیا جا رہا ہے. کراچی, اسلام آباد, پشاور کے بعد نواب شاہ میں بھی آتش بازی ہو رہی ہے. نئے سال کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف شہروں میں, ملتان میں بھی خوب آتش بازی اور نئے سال کو ویلکم کیا جا رہا ہے. مختلف شہروں, مختلف ممالک کی دنیا میں ہم بات کر رہے تھے. شائستہ, آپ خاص طور پر بات کر رہی تھی کہ پاکستان میں بھی بالکل اسی طریقے سے اب نئے سال کو ویلکم کیا جاتا ہے جس طرح مغربی ممالک میں, ویسٹرن کنٹریز میں اور خلیجی ممالک میں بھی, ترقی یافتہ ممالک میں جس طریقے سے نئے سال کو ویلکم کیا جاتا ہے. پاکستانی بھی اب دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہر میدان میں ہی ہم دنیا کے لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. بالکل, چاہے وہ معیشت کا میدان ہو یا چاہے وہ دفاعی میدان ہو یا پھر چاہے آتش بازی کا میدان ہو, ہم ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں ہے. اور جناب آپ کو بتائیں کہ پاکستان, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, سنگاپور, تھائی لینڈ, جاپان, جنوبی اور شمالی کوریا میں نیا سال شروع ہو چکا ہے. اور 12 بجتے ہی سال نو کے آغاز کے ساتھ ملک بھر میں آتش بازی اور جشن کا سلسلہ جو ہے وہ جو شروع ہوا تھا وہ اب تک جاری ہے, جس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ایک طرف گجرانوالہ کے مناظر ہیں, دوسری جانب گورنر ہاؤس کراچی کے مناظر ہیں جہاں پر شاندار آتش بازی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. اور جیسا کہ ساتھی اینکر جواد نے بھی بتایا کہ گورنر ہاؤس میں پچھلے برس بھی جو ہے وہ سال نو کو ویلکم کیا گیا تھا, تو 50 منٹ کا جو وقت تھا اس دوران آتش بازی کی جاتی رہی, جو کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید طویل ترین جو ہے وہ وقت تھا آتش بازی کا. کراچی, اسلام آباد, لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے. نیا سال ہے تو جناب خوشی بھی ہوگی. خوشی منانے کے لیے من چلے, ہلا گلا کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے. گورنر ہاؤس کراچی میں آتش بازی کے ذریعے 2026 کا خیر مقدم بھی کیا جا رہا ہے. 70 کا تاریخی لینسڈاؤن پل ہے جہاں پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. سال نو کی آمد پر لاہور کے لبرٹی چوک اور پشاور کے رنگ روڈ پر شاندار آتش بازی ہوئی. اور وہ سال نو پر 50 منٹ آتش بازی نہیں, میرے خیال سے 14 اگست کے موقع پر شاندار آتش بازی جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں کی گئی تھی. اچھا, تو مختلف ملکوں میں سال نو کا آغاز ہو چکا ہے. پاکستان میں بھی سال نو کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. شام جب پاکستان میں 6 بجے تو آسٹریلیا کے مختلف شہروں میں بشمول سڈنی میں 2026 کے استقبال کے لیے بڑے پیمانے پر آتش بازی کا ہم نے شاندار مظاہرہ بھی دیکھا. پھر جاپان, جنوبی کوریا اور جو دیگر ایشیائی ممالک ہیں وہاں پر بھی نئے سال کے موقع پر روایتی رسومات کا اہتمام کیا گیا, روایتی تقریبات کا اہتمام کیا گیا. اگر جاپان کی بات کی جائے تو وہاں پر نہ صرف آتش بازی کی گئی بلکہ جو نئے سال کا آغاز ہے وہ ایک منفرد روایت کے ساتھ کیا جاتا ہے جسے جویا نوکانے کہتے ہیں. اور اس کے تحت جو ہے وہ نئے سال کے آغاز پر بدھ مت کے مندروں میں لگی جو بڑی گھنٹیاں ہوتی ہیں ان کو 108 مرتبہ بجایا جاتا ہے. عام طور پر 107 بار گھنٹی پرانے سال کی آخری رات کو بجائی جاتی ہے, جبکہ جو 108ویں گھنٹی ہوتی ہے وہ نئے سال کے ٹھیک پہلے سیکنڈ پر بجائی جاتی ہے. اب یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پورٹ برینڈ کے مناظر ہیں. پورٹ برینڈ کراچی کے مناظر جہاں پر شاندار آتش بازی اس وقت ہو رہی ہے اور یہاں پر غالباً کانسرٹس وغیرہ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے لوگوں کے لیے. اور بڑا ہی خوبصورت پورٹ برینڈ کا جو ہے وہ نظارہ ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے. ایک جانب سمندر, دوسری جانب وہ نیکی جیٹس کا پل جو ہے, جو پرانا پل تھا جہاں پر ایک بڑی فوڈ اسٹریٹ ہے شاندار, اور وہاں پر آتش بازی کا مظاہرہ, مطلب کھانے کے ساتھ ساتھ آتش بازی. اور شائستہ یہ وہ پوائنٹ ہے کراچی کا جہاں پر غالباً سب سے زیادہ تعداد میں شہری جمع ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے, کیونکہ یہاں پر کھانے پینے کا بھی اہتمام ہے اور میوزک کنسرٹ بھی کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ
सा एनवायरनमेंट है आतिशबाजी यहाँ का का। भी शानदार मुजाहरा किया जाता है। और इसी तरीके से गवर्नर हाउस कराची में भी ये आतिशबाजी, ये खुशियाँ और ये जो आसमान रंगो नूर में पाकिस्तान में भी नहा रहा है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के तमाम ही बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी पुलिस की जानिब से, हुकूमतों की जानिब से आज़ादी दी गई है, कोई रास्ते बंद नहीं किए गए, जश्न मना सकते हैं। ये इस बात की गुमाजी कर रहा है कि पाकिस्तान 2026 में तरक्की के मनाजिर तय करेगा, क्योंकि हम माजी के कुछ बरसों में देखते रहे हैं जब रास्ते बंद कर दिए जाते थे और VIP प्रोटोकॉल्स के नाम पर शहरियों को जश्न मनाने से रोक दिया जाता था, मुख्तलिफ सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता था। लेकिन इस बार कहीं कोई रास्ता बंद नहीं है, तो आज़ादी के साथ पाकिस्तान में खुशियाँ मना सकते हैं। और ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में अमन कायम हो चुका है और पाकिस्तान अब तरक्की के मनाजिल तय करता हुआ नज़र आ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े जरीदे और दुनिया भर के बड़े बड़े जो लीडरान हैं वो भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरफ नज़र आ रहे हैं, और अब पाकिस्तानी भी दुनिया के हर मैदान में अपनी धाक बिठा रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से ये आतिशबाजी की जा रही है, ये दुनिया के दीगर ममालिक में जो अब से कुछ देर पहले हुई थी, शाम 4 बजे से जो सिलसिला शुरू हुआ था, उन ममालिक में जो आतिशबाजी की गई उससे किसी तरह भी ये कम नहीं है। और बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान में भी मनचले और शहरी सड़कों पर हैं, जश्न मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नए साल को वेलकम कर रहे हैं। जिस तरह न्यूजीलैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, हमने अब से कुछ देर पहले चाइना में देखा था, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में रिवायती अंदाज, मुख्तलिफ अंदाज थे जिस तरीके से जश्न मनाया गया। कहीं पर रिवायती म्यूज़िक के ज़रिए रिवायती डांस किया गया, और कहीं पर मजहबी रिवायत के ज़रिए, जैसे आपने बताया कि 108 बार बेल को बजाया गया और उसके बाद में नए साल को वेलकम किया गया। अभी लंदन में, दुबई में, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, वहाँ पर भी गहमा गहमी उरूज पर है और वहाँ भी नए साल को वेलकम किया जाएगा। 2025 को अलविदा कर दिया गया और पाकिस्तानीज़ भी अब 2026 में दाखिल हो चुके हैं। सवात के मनाजिर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी शानदार आतिशबाजी की जा रही है। और ये वो मकामात हैं जहाँ पर कभी इस तरीके से आतिशबाजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के उन इलाकों में भी नए साल को वेलकम किया जा रहा है जहाँ पर अब अमन मुकम्मल तौर पर कायम हो चुका है। स्वात के मनाजिर आप देख सकते हैं जहाँ पर शानदार आतिशबाजी के साथ 2026 को वेलकम किया जा रहा है। बिल्कुल जवाब, तसव्वुर कीजिए कि रुई के सफ़ेद गाले हैं और बर्फ़बारी हो रही है, और बर्फ़बारी के मनाजिर के साथ साथ जब आतिशबाजी के मनाजिर मिलते हैं तो क्या ही खूबसूरत समा पेश करते होंगे। स्वाद के मनाजिर इस वक्त हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं जहाँ पर शानदार आतिशबाजी का ये सिलसिला इस वक्त जारी है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि एक तो साल का आखिर भी है, विंटर वेकेशन भी हुई है, बहुत सारे लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं वहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करने के लिए। सयाह बड़ी तादाद में मौजूद हैं, शुमाली इलाका जात का उन्होंने रुख किया हुआ है। ऐसे में वो जब यहाँ पर साले नौ को वेलकम कर रहे हैं तो यकीनन एक बड़ा ही खूबसूरत समा क्रिएट हो रहा है, जो कि हम इस वक्त अपने नाज़रीन को टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। और ऐसे में जवाब, साल 2026 को जब हम वेलकम कह रहे हैं तो साल 2025 में वो शख्सियात जो हमसे बिछड़ गई उन्हें भी यकीनन हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। साल 2025 में फ़न, सियासत, खेल और मीडिया से वाबस्ता कई मारूफ शख्सियात का इंतकाल भी हुआ, जिनमें काबिल ज़िक्र हैं इरफान सिद्दीकी साहब, मियां मंजूर भट्टू, मियां मोहम्मद अजहर और आगा सिराज दुरानी जो कि इस दुनिया से रुखसत हुए। फिर माहिर मईशत और पहली खातून गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं शमशाद अख्तर, उनका भी इंतकाल हुआ। TV और फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा आयशा खान, हुमैरा असगर, हुमैरा आबिद अली और चाइल्ड स्टार उमर शाह का भी इंतकाल हुआ। तो यकीनन वो भी हमारी यादों में हैं और हम उनको भी नहीं भूलें और उनको अपनी यादों में बसाए। हम साले नौ में दाखिल हो रहे हैं, 2026 को खुशामदीद कह रहे हैं। एक तरफ मनाजिर दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को गवर्नर हाउस कराची के, दूसरी जानिब मनाजिर दिखा रहे हैं घंटा घर मुल्तान के, जहाँ पर इस वक्त शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मनचले बड़ी तादाद में निकले हुए हैं अपने घरों से, फैमिलीज़ भी बड़ी तादाद में निकली हुई हैं और साले नौ का जश्न देखने के लिए, क्योंकि ये ऐसे मनाजिर होते हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो सभी कोशिश करते हैं कि घरों से बाहर निकलें और इस तरह के मौसम को और इस तरह की आतिशबाजी को जो है वो एंजॉय कर सकें। और
वही हम इस वक्त अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं। और खेलों के मैदान में भी पाकिस्तान ने साल 2025 में फतह के झंडे गाड़े। राइजिंग स्टार एशिया कप हो, अंडर 19 एशिया कप का फाइनल हो जिसमें हमने अपने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी, नाक को चने चबवाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से जंग के मैदान में हमने अज़ली दुश्मन को हराया था। फिर हमारे अरशद नदीम साहब हो, उन्होंने भी साल भर पाकिस्तान के झंडे को ऊंचा रखा। और हमारे वॉलीबॉल के प्लेयर वो भी किसी सूरत किसी तरीके से कम नहीं रहे और हर मैदान में ही पाकिस्तान को कामयाबियां दिलवाते रहे। उसका तो कोई तोड़ ही नहीं पूरी दुनिया में मिला पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम का। हमारे हॉकी के प्लेयर्स भी फतह के झंडे गाड़ते रहे दुनिया के हर मैदान में। और अब 2026 में जिस तरीके से हम दाखिल हो रहे हैं कामयाबियों के साथ, तारीफ़ों के साथ, और इस साल भी इसी फतवाहत के सिलसिले को जारी रखेंगे इसी तरीके से। और जो खुशियाँ और जो तरक्की पाकिस्तान के नसीब में आ रही है वो इस साल भी इसी तरीके से आएगी, बल्कि उसकी रफ्तार मज़ीद बढ़ेगी। 2026 में भी नई उम्मीदें, नई ख्वाहिशात के साथ पाकिस्तानी 2026 में दाखिल हो चुके हैं। जश्न मनाया जा रहा है मुख्तलिफ शहरों में और उन शहरों के मनाजिर भी हमने आपको दिखाए जिन शहरों के मनाजिर आपने कभी नहीं देखे होंगे। ख़ास तौर पर सवात में जिस तरीके से आतिशबाजी की गई, सक्खर में जिस तरह आतिशबाजी हुई, और कराची गवर्नर हाउस, पोर्ट ग्रैंड के मनाजिर आपको दिखाए। इस्लामाबाद में भी जहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, शाहीन चौक अंडरपास वहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। और मुल्तान में भी घंटाघर चौक पर आतिशबाजी की जा रही है। कराची में गवर्नर हाउस, पोर्ट ग्रैंड और CVO 3 मकामात पर आतिशबाजी की जा रही है। जबकि मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पर मंचले इस वक्त जमा हुए हुए हैं, वहाँ आतिशबाजी तो नहीं हो रही लेकिन ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े डाले जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। म्यूज़िक कंसर्ट के ज़रिए नए साल को वेलकम किया जा रहा है। और ये आतिशबाजी, ये खुशियाँ इसीलिए मनाई जाती हैं साल नौ को जब वेलकम किया जाता है, ताकि पूरा साल इसी तरीके से खुशियाँ मनाते रहें और बिल्कुल इसी तरीके से हम आसमान को रंगो नूर की बरसात में देखते रहें और फतोहात इस तरीके से हम समेटते रहें और खुशियाँ ही खुशियाँ 2026 में या नए साल में पाकिस्तानियों को मिलती रहें। दुनिया भर में इसी तरीके से साल नौ को वेलकम किया गया है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, जनूबी कोरिया, बीजिंग में जिस तरीके से मनाजिर थे रिवायती अंदाज में वेलकम किया गया। कुआलालंपुर में भी जिस तरह रिवायती घंटियाँ बजाकर नए साल को वेलकम किया गया। मलेशिया में नए साल को वेलकम किया गया था। अभी मुख्तलिफ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर नए साल को वेलकम करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बिल्कुल, कहीं पर साल नौ को वेलकम कर दिया गया है, हम साल नौ को वेलकम कर रहे हैं और कुछ ऐसे ममालिक अभी बाकी हैं जिन्होंने साल नौ को वेलकम करना है। साल 2025 पाकिस्तान के लिए कई हवालों से फैसला कुन साबित हुआ, यादगार साल साबित हुआ, जिसमें हमने सबसे जो अहम है वो ये है कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। इस दौरान पाकिस्तान ने भारत के कम से कम 6 तैयारे मार गिराए। और जवाद, इसमें जो मज़े की बात है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब भी जिक्र करते हैं अपनी कामयाबियों का तो वो ये जिक्र करना नहीं भूलते कि पाकिस्तान ने जो है वो उनके कहने पर एक तो जंग रोक दी और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने जो है वो भारत के राफेल तैयारे गिराए। तो ये यकीनन पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जहाँ पर भी जाते हैं जनाब तो वो पाकिस्तान का ये जिक्र, पाकिस्तान की एक कामयाबी जो है 118 बार जिक्र कर चुके हैं। अच्छा, 118 मरतबा जो है वो इसका जिक्र कर चुके हैं। तो यकीनन ये हमारी एक बड़ी कामयाबी है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भी बहुत कामयाबियाँ हासिल की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी दिफाई मुआहदा तय पाया, जिसे खत्ते में स्ट्रेटेजिक ताउन के लिए एक अहम संगी मील के तौर पर भी देखा जाता है। खेलों की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से थोड़ा मिला जुला रहा। कौमी क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, वो पहले राउंड में बाहर हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। जो जूनियर टीम्स हैं उन्होंने कौम को बहुत खुशखबरियां दी। पाकिस्तान शाइन्स ने एशिया कप जीता, जबकि पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने भी एशिया कप अपने नाम करके मुस्तकबिल के लिए उम्मीदें रोशन की। मौशी महाज की अगर बात की जाए तो बहुत मुस्बत पेशरफ्त सामने आई। पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 2022 मार्च के बाद पहली बार बढ़े और वो बढ़कर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच गए। यकीनन ये एक बड़ी अहम कामयाबी थी जिसे मौशी इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम भी करार दिया जा रहा है। नया साल अब आगाज़ हो रहा है इसका, तो अवामी जज्बात भी जो हैं वो लोग बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, बड़े होपफुल नज़र आ रहे हैं। और गैलप का जो सर्वे हुआ उसकी भी अगर हम बात करें तो गैलप के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो 2026 से बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो ये जो साल है ये मौशी लिहाज से बेहतर साल होगा।
اور جو یہ سروے ہوا اس میں 37% لوگ جو ہے وہ نئے سال میں بہتری کے لیے پرامید بھی دکھائی دے رہے ہیں. وہیں پاکستان میں 51% تک یہ شرح بھی پہنچ گئی ہے, یعنی کہ پرامید رہنے کی جو شرح پہنچی ہے, یقیناً یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, ایک بڑی پازیٹیو کی بات ہے. اور 2025 کی کامیابیاں اور عوامی اعتماد جو ہے وہ 2026 کے لیے ایک مثبت بنیاد بھی فراہم کر رہے ہیں. تو یقیناً ہم امید کر سکتے ہیں کہ 2026 جو ہے وہ ملک میں سیاسی, معاشی اور سماجی بہتری کا سال ہوگا. اور اسی بات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس وقت ہم, سال نو کو کہہ رہے ہیں خوش آمدید. اور ہمارے نمائندے چاند نواب اس وقت موجود ہیں گورنر ہاؤس میں, ان کی جانب بھی چلیں گے اور ان سے بھی جانیں گے کہ وہ اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں. کیوں جواب؟ بالکل, چاند نواب اگر ہمارے ساتھ ہے تو ان سے بھی بات کریں گے. لیکن ابھی جس طرح شائستہ آپ نے گنوائے جو محاذ جن میں پاکستان کو کامیابیاں ملی, سفارتی محاذ, دنیا معترف رہی, ٹرمپ ہو یا دنیا کے دیگر بڑے لیڈران, ان کی کوشش, ان کی خواہش یہی رہی کہ پاکستان کا ذکر کیا جائے, پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں. اور کھیل کے میدان میں بھی کامیابیاں صحیح تھیں, معیشت کے میدان میں بھی پر امید ہے کہ 2026 میں بھی اسی طرح کامیابیاں سمیٹیں گے. شاہین چوک انڈر پاس لیے چلیں گے آپ کو شہر اقتدار میں, جہاں پر غلام اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. غلام اویس, کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی, اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو آج یہاں پہ بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور نیا جو سال جب شروع ہوا تو یہاں پہ شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی اس نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے. لیکن ایک بارش کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ ڈسٹربنس بھی ہوئی, لیکن یہاں پہ بھرپور اس کے باوجود سی ڈی اے کی جانب سے آتش بازی کا اہتمام کیا گیا تھا. بھرپور انداز سے آتش بازی کی گئی, جس میں چیئرمین سی ڈی اے اور طلال چودھری ان کے ساتھ آئی جی اسلام آباد بھی یہاں پہ موجود تھے. لوگ فیملیز کے ہمراہ یہاں پہ آئے اور اس شاہین چوک پہ بھرپور انداز سے آتش بازی کی گئی. لوگوں نے نئے سال کو ویلکم کیا, اور بارش کی وجہ سے سردی بھی تھی, لیکن ساتھ ساتھ لوگ جو ہے وہ انجوائے بھی کر رہے تھے اس ہلکی بارش کو, اور نئے سال کو بھی ویلکم کر رہے تھے اور اس نئے سال کی خوشیوں کو انجوائے کر رہے تھے. اگر بات کی جائے اوورآل اسلام آباد کی, تو اسلام آباد میں تقریباً 10 جگہوں پہ نئے سال کے موقع پر آتش بازی کی گئی ہے. اور سب سے بڑی جو آتش بازی کی جا رہی تھی وہ سی ڈی اے کی جانب سے اسی مقام پہ شاہین چوک پہ کی جا رہی تھی. اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ نئے سال کے موقع پر آتش بازی کی جا رہی ہے. اب بھی جو لوگ ہیں وہ گھروں سے باہر نکلے ہیں, اسلام آباد کی سڑکوں پہ نوجوان فیملیز گھوم رہے ہیں اور اس بارش کو بھی انجوائے کر رہے ہیں, نئے سال کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. اگر ماضی کی بات کی جائے تو جو سال گزر چکا ہے وہ پاکستان کے لیے کافی حد تک بہتر ثابت ہوا. پاکستان نے سفارتی محاذ پر, عسکری محاذ پر 2025 میں بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں, اور لوگ دعاگو ہیں کہ آنے والا سال پاکستان کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ثابت ہو اور پاکستان کے لیے معاشی خوشحالی کا سال ثابت ہو. مختلف جگہوں پہ لوگ جو ہے وہ دعائیں بھی کر رہے تھے بڑی تعداد میں. اب بھی جو ہے وہ لوگ سڑکوں پہ جمع ہے, اس سال کو انجوائے کر رہے ہیں. بارش کے باوجود جو ہے وہ لوگ اب بھی نئے سال کو بھرپور طریقے سے ویلکم کر رہے ہیں. جی تو جناب, بارش ہو رہی ہے تو کیا ہو گیا, سال نو کو ویلکم تو کرنا ہی ہے. اسلام آباد کی صورتحال تو ہم جان ہی چکے ہیں. گورنر ہاؤس کا رخ کر لیتے ہیں. کراچی میں چاند نواب ہمارے نمائندے اس وقت موجود ہیں اور ان سے جان لیتے ہیں کہ ایک تو آتش بازی کے کیا خوبصورت مناظر جو ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں, انہوں نے کیا دیکھے اور کس طرح سے یہاں پر لوگ انجوائے کر رہے ہیں, سال نو کو ویلکم کر رہے ہیں. چاند نواب, پہلے تو اے آر وائی دیکھنے والوں کو سب کو سال نو مبارک. گورنر ہاؤس میں آدھے گھنٹے تک جو ہے آتش بازی کا مظاہرہ کیا. ٹھنڈا موسم ہے لیکن جو جشن منا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ گرمی ہو گئی ہے. مرد ہیں, خواتین ہیں, بچے, ہر کوئی جشن منا رہا ہے. سب ہلالی پرچم ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں. مشہور اینکر وسیم بادامی نے پاکستان کے نعرے لگوائے عوام سے اور جوش خروش کے ساتھ نعرے لگائے. 2026 کو خوش آمدید کہا گیا ہے. اور گورنر کامران ٹسوری نے اسلام آباد سے ٹیلی فونی خطاب میں کہا ہے کہ 2025 ہمارے لیے خوشی کا سال تھا, کیونکہ مار کے حق میں بھارت کو شکست دی اور ایشیا کپ میں کرکٹ میں بھارت کو شکست دی. اور انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ فائرنگ نہ کرے, جشن ضرور منائے. بالکل خوشی کا سما ہے. اگر کیمرہ مین آپ کو ملتی دکھا سکے, آپ رات گئے بھی لوگ یہاں خوشی منا رہے ہیں, سال نو کا جا رہے ہیں 2026 کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 ہماری خوشی کے لیے خوشی کا تھا اور 2026 میں جو ہمیں خوشی کا لائے گا اور پاکستان ترقی کرے گا. کراچی کے لوگ بہت خوش ہیں, جشن منا رہے ہیں. ہر کسی کا یہی کہنا ہے کہ 2026 ہمارے لیے
तरक्की का, खुशहाली का साल होगा। सब हलाली परचम हाथों में उठाए हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और आधे घंटे तक आज जो है आतिशबाजी का बेहतरीन मुजाहरा किया गया है गवर्नर हाउस में। जी चांद नवाब गवर्नर हाउस में अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि पाकिस्तान के परचम थामे यहाँ पर नारेबाजी भी की जाती रही, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते रहे और आधे घंटे से ज़्यादा आतिशबाजी होती रही। पोर्ट ग्रैंड पर क्या सूरत हाल है, राफे हुसैन फारूकी हमारे साथ मौजूद है। राफे हुसैन, यहाँ पर तो म्यूज़िक कंसर्ट का भी एहतमाम किया गया है और खानों की धीमी धीमी खुशबू भी है और आतिशबाजी भी हो रही है, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको और ARY के तमाम नाजरीन को, पूरे मुल्क को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और इस दुआ के साथ कि ये नया साल हम सब के लिए अमन, सलामती, इस्तेकाम और मोहब्बतों का पैगाम लेकर आए और जो हमने सोचा है वो जो है इस नए साल में पूरा हो सके। जहाँ तक बात की आपने जश्न की, तो पोर्ट ग्रैंड में जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ कर आ गई, क्योंकि नए साल का जश्न था तो ज़ाहिरी बात है लोगों ने भरपूर तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया है। सबसे पहले मारूफ फनकारों ने यहाँ पर म्यूज़िक का तड़का लगाया और अपने फ़न का मुजाहरा किया, जिस पर शहरी झूमते रहे और उसके बाद फिर यहाँ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आसमान पर जो है वो कौसो कज़ा मुख्तलिफ रंग जो है वो बिखर गए और लोगों ने इस आतिशबाजी को अपने कैमरे की आंख से अक्सबंद भी किया। यहाँ पे लोग झूमते भी रहे और सिर्फ म्यूजिक और आतिशबाजी ही नहीं बल्कि यहाँ पर खाने भी रखे गए थे और लोग जो है वो मुख्तलिफ खानों से यहाँ पर लुत्फानंदोज भी होते रहे, महसूस होते रहे और चटपटे खाने भी खाते रहे। हमारे साथ कुछ लोग भी शहरी भी मौजूद हैं जो किस तरह इंजॉय कर रहे हैं, बात करेंगे। आप आई, कॉन्सर्ट हुआ, आतिशबाजी हुई, नया साल कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा कॉन्सर्ट हुआ है यहाँ पे पोर्ट ग्रैंड में आए हुए, बहुत मज़ा आ रहा है और अल्लाह ताला आगे न्यू ईयर 2026 में जो है वो बहुत कुछ होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए और रोड वगैरह बनने चाहिए, बस इतनी ही विश है और अल्लाह ताला आगे हम सबको कामयाब करे, आमीन। यहाँ पर आपने शहरियों की भी तासुरात सुने और सभी लोग जो है वो नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, नए साल को वेलकम कर रहे हैं और अभी भी इस वक्त भी जो है वो डांस परफॉर्मेंस जारी है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट जारी है, लोगों की तादाद यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ठंड भी हो रही है, सर्द हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो नए साल की आमद का जो खुशी है उसको मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग इस वक्त पोर्ट ग्रैंड में मौजूद है। पूरा पोर्ट ग्रैंड जो है वो शहरियों से भरा हुआ है, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर कोई अपनी फैमिलीज के हमरा, दोस्तों के हमरा यहाँ पर मौजूद है और म्यूजिक के ऊपर यहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं और छोटी छोटी अपनी विशेस भी बता रहे हैं। जैसे खातून ने ये विश की क्या है, आई विश के महंगाई कम हो जाए, रोड्स बन जाएं। अगर मैं आपसे पूछूं साले 9 की आपकी विश क्या है? मेरी साले 9 की विश ये है कि मैं अपने वालिदैन और फैमिली के हमरा जो है वो अल्लाह ताला मुझे इस बार हज जो है वो नसीब फरमा दे, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस साल हज पे जा सकूं और जो है वो अपनी फैमिली को भी हज करवा सकूं। तो मेरी ये ख्वाहिश और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करेगा इस साल में। तो सबकी ख्वाहिश है और मैं भी आज कैमरे की तवज्जो से आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने नए साल पे क्या विश किया है, उबैद की क्या जो है वो क्या विश है? अच्छा, मेरे साथ इस वक्त उबैद नहीं है, मेरे साथ इस वक्त जवाद है, तो जवाद से हम पूछ लेते हैं। जवाद, आपकी इस दफ़ा क्या विश है नए साल पर? देखिए, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। एक तो सबसे पहले राफे हुसैन ने बताई कि अल्लाह के घर जाने की ख्वाहिश है अपनी वालिदैन के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और दूसरी ये ख्वाहिश है कि कामयाबियाँ मज़ीद नसीब हों और जो सबसे बड़ी पाकिस्तान में हम ख्वाहिश रखते हैं शाइस्ता, वो ये होती है कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके पास अपना एक अच्छा घर हो जो जिसकी वो मलकियत रखता हो, ताकि अपने बच्चों का फ्यूचर सेव किया जा सके। सबसे आपने सवाल कर लिए हैं, राफे ने भी आपसे सवाल किया, हम चाहेंगे शाइस्ता इस सवाल का आप जवाब ज़रूर दें। अच्छा, मेरी इस साल की जो विश है वो राफे से कुछ मिलती जुलती है। मैं भी अपनी फैमिली के साथ जो है वो उम्रा की सादत हासिल करना चाहती हूँ, तो आप सबसे मेरी भी यही गुजारिश होगी कि मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी जो अपनी फैमिली के हमरा जो है वो उम्रे की सादत हासिल कर सकूँ। आमीन सुमामीन। अब राफे ज़रा मुझे ये बताइए कि नए साल पर यहाँ पर आप आए हुए हैं, कॉन्सर्ट आपने देख लिया, कुछ खाना शाना खाया है यहाँ पर या नहीं? देखिए, अभी तक मुझे तो खाना खाने का मौका नहीं मिला और ना ही मेरी टीम को खाना खाने का मौका मिला है, लेकिन जो यहाँ शहरी आए हैं वो भरपूर तरीके से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं।
पहले उन्होंने म्यूजिकल कॉन्सर्ट इंजॉय किया, फिर उन्होंने आतिशबाजी इंजॉय की, और अब जो लोग थक हार गए हैं झूम झूम के रक्स करके, तो अब वो चले गए हैं खाना खाने। और वहाँ पर जो है मछली, पिज़्ज़ा, बर्गर और मुख्तलिफ अनवाउ इक़साम के जो है खाने मौजूद हैं, और नाम लेती जो है ना वो ज़बान पे पानी आ रहा है। तो अभी हम बुलेटिन में मौजूद हैं, अभी हम बुलेटिन में मौजूद हैं, खाना खाने का ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है, क्यों हमारा दिल खराब करें। जरा ये बताएं, चांद नवाब की तरफ इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, तो चांद नवाब आप बताइए, आप इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि साले 9 पर हर बंदे की एक विश होती है, तो आपकी विश क्या है? मेरी विश ये है कि जो हमारे शोहदा हैं, अल्लाह ताला जिन्हें जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, उनका अल्लाह उनकी मफ़रत फरमाए, शहीद हैं, और कराची में अमन कायम हो, पाकिस्तान में अमन हो कायम हो, तरक्की हो, और ARY में जितने काम करने वाले हैं उनको जिस तरह हम खुश हैं, और मज़ीद 2026 हमारे लिए खुशी का साल हो, और अल्लाह ताला जो मेरे महरूमीन हैं उनकी मफ़रत फरमाए, और ARY में जितने भी बीमार हैं या जो है उनको भी अल्लाह ताला सेहत कामिला अता करे। मेरी हमेशा दुआएं रहती हैं, और पाक फ़ौज के लिए दुआएं रहती हैं कि जिस तरह वो सरहदों की हमारी फोर्सेस हिफाजत करती है, कराची में अमन कायम करती है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो बैतुल्लाह की ज़ियारत फरमाए, और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत फरमाऊँ। लेकिन मैं इससे पहले जो है 6 साल की उम्र से सऊदी अरब में था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई हज किए हैं, और अच्छी तरह अरबी भी बोलता हूँ। लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि तमाम लोग, अल्लाह ताला तमाम मुसलमान को, पाकिस्तानियों को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब अता फरमाए, और वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला हो तो पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है पाकिस्तानियों की कि भारत को शिकस्त दे 2026 में, और 2026 हमारे लिए खुशी का साल हो, और ARY मज़ीद तरक्कियाँ करे। जी ठीक है, चांद नवाब गवर्नर हाउस से और राफे हुसैन पोर्ट ग्रैंड से, हमें वहाँ क्या सूरत हाल है, लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, साले 9 को वेलकम कर रहे हैं। साल के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग की गई है, मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 2 बच्चियों समेत 12 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब से कुछ देर पहले इसी बात का, इसी खदशे का इजहार कर रहे थे कि खुशियां वहां तक मनाएं कि जहां तक सिर्फ खुशियां ही रहें, जब वो गम में तब्दील ना हो, और 2 बच्चियों समेत 11 अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान बताइए क्या डिटेल्स हैं? देखें, जख्मियों की तादाद 12 हो चुकी है, और तमाम जख्मियों को सिविल जिना और अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया है। 2 कमसन बच्चियां भी पहुंची हैं, एक बच्ची की उम्र 7 साल और एक बच्ची की उम्र 11 साल है। जिन इलाकों में फायरिंग के सबसे ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं वो कोरंगी है, इसके अलावा नाज़ाबाद, सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाके हैं। अहम बात यह है कि इस बार पुलिस की जानिब से फौरी कार्रवाइयाँ की गई हैं। मलीर और सेंट्रल जोन में पुलिस की जानिब से जो हिकमत अमली अपनाई गई थी कि ड्रोन की मदद से भी लोगों पर नजर रखी जाए, तो सेंट्रल में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। शारा नूर जहां पुलिस ने भी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, बफर जोन के इलाके से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, तैमूरिया के इलाके से मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। पुलिस कहती है कई लोग तो ऐसे हैं जो असले से छोटे और बड़े हथियारों से रोड के ऊपर ही फायरिंग कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको गिरफ्तार किया। अगर हवाई फायरिंग के मुल्जिमान की गिरफ्तारियों की बात की जाए तो ये तादाद 12 हो चुकी है, और पुलिस कहती है मुल्जिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। कई जख्मी तो ऐसे हैं जो हवाई फायरिंग की जद में आकर मुख्तलिफ अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, सर पे उनको गोलियां लग गई और कुछ की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। सलमान लोधी हमें तफसीलात बता रहे हैं कि कराची में नए साल के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग हुई। इस हवाई फायरिंग से मुख्तलिफ इलाकों में 2 बच्चियों समेत 12 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले गिरफ्तार कर लिया है। तो वतन अजीज में साले 9 को किस तरीके से खुशामदीद कहा जा रहा है ये तो हमने दिखाया है, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं दुबई, जहां के मनाजिर हम आपको दिखाते हैं। साले 9 का इस्तकबाल करने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रंगो नूर की बरसात हद निगाह तक हमें दिखाई दे रही है। बुर्ज खलीफा पर शानदार जो है वो जश्न का इस वक्त सिलसिला जारी है। आतिशबाजी भी होगी और लेजर लाइट शो भी होगा। 8 मिनट बाद दुबई में नया साल शुरू होगा, जिसको खुशामदीद कहने के लिए बेतहाशा तैयारियां की गई हैं। और बताया गया था कि 7 रोज़ा जश्न का जो सिलसिला है वो साले 9 को खुशामदीद कहने के लिए दुबई में जारी रहेगा। इस वक्त